हेलो डियर माय स्टूडेंट्स। तो इन टुडेस सेशन आज हम डिस्कस करेंगे डियर नॉर्सेट 8 के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। लेट्स स्टार्ट द सेशन डियर। So first question, a client who is at 26 weeks of gestation arrived at the clinic for her scheduled examination. Her blood pressure was around 150 by 86 dear, 150 by 86. She tells the nurse that she has gained 5 pounds in last 2 weeks. 2 हफ्ते में इतना ज्यादा वजन गेन हो गया है. What is the priority nursing action? So as per the scenario, you can think the BP is more is kind of 150 by 86. तो एक डेफिनेशन जो होता है हमारा डियर, gestational hypertension is a BP more than 140 by 90 mm of Hg after 20 weeks of gestation, two times, which is 4 times, 4 hours apart and all. Okay. सो अब इसमें लग रहा है कि शायद से पेशेंट को हाइपरटेंशन है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, इसलिए वजन जल्दी गेन हो रहा है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस सेशन, फॉर दिस क्वेश्चन विल बी टेस्ट द क्लाइंट फॉर द यूरिन एल्बुमिन। सो हमें देखना है क्या क्या यूरिन में कहीं प्रोटीन तो नहीं आ रहा है। ओके, सो दैट इज द आंसर डियर। गुड। द नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse is scanning for a client experience an acute episode of bronchial asthma. So bronchial asthma, you all people, all of you know that there's a the bronchus area becomes very vasoconstricted. Okay, because of any kind of allergy or the people who are having an asthma and all. What outcome should be achieved? तो हमें क्या करना चाहिए? Raising the mucus secretion from the chest, raising the mucus secretion from the chest. Okay, curing the client's condition permanently, limiting pulmonary secretions by decreasing the fluid intake, या fluid intake रोकना है हमें, या convincing the client that the condition is emotionally based. तो बोलना है कि भाई ये तो नॉर्मल है। तो ये इसका आंसर होगा हमारा कि जब इस द म्यूकस एक्सक्रीशन एंड ऑल, तो रिंजिंग द म्यूकस सिक्रेशन। सो हमें म्यूकस सिक्रेशन जो पेशेंट के क्लाइंट के है वो प्रायोरिटी बेस्ड है। ओके, एयरवे क्लियरेंस एंड ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question is very important and you should have a idea that a client admitted to the hospital with a diagnosis of chronic kidney disease. Patient को CKD disease है, ठीक है? For this, for signs of what electrolyte imbalance should a nurse monitor the client? ऐसा कौन सा electrolyte balance है जो एक CKD patients में देखा जाता है? तो देखिए, आपको क्या लगता है इसमें से क्या होगा? Okay, the answer is your hypocalcemia dear. Okay, अब थोड़ी सी बात करते हैं आपके नॉलेज की। तो जब भी बेटा एक सीकेडी होता है तो जो किडनी है हमारी, ओके, whenever a patient is having a kidney disease and all, so what happen, the potassium level increases. potassium level increase होता है, कम नहीं होता, increase होता है, हमेशा याद रखिएगा। Okay, and since kidney is not working, the urine output is diminished. Ultimately, the patient will have increased level of potassium. So यहाँ पे अगर hyperkalemia होता तो हम वो मार्क करते। Again, if we talk about the hypercalcemia, always remember calcium और डियर जो फॉस्फोरस होता है, फॉस्फोरस जो होता है वो हमेशा ऑपोजिट में काम करते हैं। फॉस्फोरस ज्यादा होता है तो कैल्शियम अमाउंट कम होता है बॉडी में, ठीक है? दे आर लाइक दुश्मन, समझ सकते हैं आप, ठीक है? तो अगर एक पेशेंट का किडनी फेलियर है तो मीन्स देयर इज अ डिक्रीज इन जीएफआर, ठीक है? देयर इज अ डिक्रीज इन जीएफआर। ओके, जीएफआर दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अच्छे से जो किडनी है वो जो वेस्ट प्रोडक्ट को छान नहीं रहा है। तो जीएफआर डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है कि अल्टीमेटली जो कैल्शियम है वो कैल्शियम डिक्रीज हो जाता है क्योंकि फोस्फोरस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है? तो लेट्स हैव अ डिस्कशन विद इमेज। यू कैन सी इन दिस इमेज डियर, आप देख सकते हैं इसमें। तो ये एक रेगुलेशन मैंने आपको दिखाया है। ओके, सो यू सी, so the GFR, as soon as the GFR decreases, if the patient is having this kidney disease, okay, तो आप देख सकते हैं कि serum phosphate level increase and calcium decreases. So hypocalcemia will be the answer. For more details, you should see about the calcium. Calcium कई टाइप के होते हैं, ठीक है? Ionized calcium होता है dear. Okay, some calciums are bind to the albumin also. Okay, okay. Next question. Let's see. Go to the next question. So during, okay, during the 6th month of pregnancy, ठीक है, a woman visit the prenatal clinic for the first time.
पहली बार क्लिनिक में आ रही है फर्स्ट टाइम पे, एज अ पार्ट ऑफ इनिशियल असेसमेंट डियर, ओके, सीबीसी यूरिन एनालिसिस आर परफॉर्म। तो इसमें से कौन सी लैब वैल्यू एबनॉर्मल लग रही है? तो इसमें से डियर हीमोग्लोबिन लेवल विच इज अराउंड 10 ग्राम पर डियर वो एबनॉर्मल है। ठीक है, हमेशा याद रखिए, इफ आई विल आस्क यू define anemia in pregnancy, means anemia in pregnancy when the HB level is less than 11 gram per dl, that is known as anemia in pregnancy, and hematocrit which is less than 33% is defined as a anemia in pregnancy dear। तो आंसर इसका हमारा वो है, ठीक है। Oh sorry, next question, a nurse is assessing a client with major depression, which clinical manifestation reflects the lung disturbance and affect related to depression? तो डिप्रेशन में तीन चीज होती है, होपलेसनेस, वर्थलेसनेस। ठीक है, तो आप इसमें से जो आपको ऑप्शंस दिख रहा है, होपलेसनेस, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड वर्थलेसनेस एंड ऑल। ठीक है, तो पेशेंट डिप्रेशन होता है। नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक nurse plan care for a client with a somatoform disorder based on understanding what is exactly it is related to। तो somatoform जो disorder patient होता है वो बहुत ही ज्यादा साइन एंड सिम्टम्स कंप्लेन करेगा कि patient is having such problem, but actually he's not having। तो ये क्यों होता है? just because an sorry, there's a kind of an unconscious means of reducing the stress। स्ट्रेस को कम करने के लिए यू कैन से पेशेंट ऐसे एक्टिंग करना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट, आफ्टर सर्जिकल क्लिपिंग ऑफ सेरेब्रल एन्यूरिज्म। सब एन्यूरिज्म की बात हो रही है एंड यू पीपल शुड हैव आइडिया व्हाट इज एग्जैक्टली इज एन्यूरिज्म। सो दिस इज अ नॉर्मल ब्लड वेसल्स, तो कुछ पर्टिकुलर एरिया में डायलेट हो जाती है ब्लड वेसल्स, so this kind of thing is known as an aneurysm। So clipping of a cerebral aneurysm, the client develops syndrome of inappropriate secretion of ADH, antidiuretic hormone। as the name suggests, antidiuretic मतलब एंटी डायलिसिस नहीं करा रहा, एंटी डायरेटिक, ओके। तो ये एक्सेस अमाउंट में हो जाता है। तो आपको क्या लगता है इसमें से कौन से पैरामीटर्स उस पेशेंट में आएंगे? वेदर देयर विल बी डिक्रीज यूरिन आउटपुट, डिक्रीज यूरिन स्पेसिफिसिटी ग्रेविटी, और इंक्रीज serum sodium level, or increase blood urea nitrogen। So as the name suggests, antidiuretic, this will decrease urine output होगा। नॉर्मल सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन वन इज द आंसर, ओके, दैट इज डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट लेवल। ये हमारा आंसर वन होगा। अब आगे चलते हैं। Let's have this image। So ADH is usually secreted from the posterior pituitary, ADH, okay, and you can see, तो ये क्या करता है, जो डायलिसिस है उसको एंटी डायरेटिक काम करता है, ठीक है। Okay, let's move to the further question। Okay, so a 3-year-old child, this is very important and repeated question there। 3-year-old child है, is receiving a liquid iron preparation। What should a nurse teach the mother in relation to the this medication? क्या एक nurse को teach करना है? Monitor the blood stool for the occurrence of diarrhea, or administer iron at least an hour before the meal, or avoid giving juice like orange around। देखिए, जब भी आयरन tablet or something the patient is taking, always remember vitamin C is added to increase the absorption। जितना ही विटामिन सी होगा वो आयरन उतना अच्छा अब्सॉर्ब होगा। एंड ऑलवेज रिमेम्बर, अब बात करते हैं जब प्रेगनेंसी में, तो आयरन और कैल्शियम साथ में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। आयरन कैल्शियम साथ में लेंगे तो अब्जॉर्प्शन आयरन का डिक्रीज हो जाता है, इसलिए पेशेंट को हमेशा कहते हैं आप आयरन अलग टाइम पे लीजिए और कैल्शियम के टैबलेट्स अलग टाइम पे लीजिए। बात करें यहाँ पे होगा डियर, हैव द चाइल्ड ड्रिंक द डाइल्यूटेड आयरन प्रिपरेशन स्ट्रॉ से। स्ट्रॉ से लेना है। स्ट्रॉ से क्यों लेना है? क्योंकि अगर पेशेंट ऐसे नॉर्मली ड्रिंक करता है बेबी, तो उसकी जो टीथ है डियर वो स्टेन हो जाएगी, तो स्टेनिंग हम नहीं चाहते, ठीक है। वो जो स्टेनिंग है हम नहीं चाहते, इसलिए वी वांट द पेशेंट टू टेक द दिस आयरन with the straw। Okay, is that clear? Let's move the further question। Yes, this is the answer। Next question, a nurse is discussing the weight loss with a obese individual with Meniere's disease। Which suggestion by the nurse is most important? ये Meniere's disease जो होता है वो कान का प्रॉब्लम होता है, जहाँ पेशेंट को वर्टिगो, चक्कर आने लगता है। इट इज रिलेटेड टू ईयर डिसीज एंड ऑल, ठीक है। तो इसमें से एक अगर वो सजेस्ट कर रही है डिस्कसिंग वेट लॉस विद एंड ओबीस, वेट लॉस की बात कर रही है, तो इसमें से क्या ऑप्शन होना चाहिए? ओके, तो आंसर है कीप अ डायरी ऑफ ऑल द फूड्स ईटन ईच डे। ओबीस के पेशेंट को डिस्कस करी वेट लॉस थेरेपी कैसे करना है, तो उस पेशेंट को एक एक चीजें नोट करनी पड़ेगी
how much items he's or she is taking along. Next, a nurse teaches the client about the warfarin, okay, which juice is to avoid. डियर, जब एक वार्फरिन टैबलेट होता है उसके साथ कौन सा जूस नहीं लेना है, दैट इज अ कैनबरी जूस। तो कैनबरी जूस अगर इंसान लेता है, वार्फरिन टैबलेट है उसे, तो उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज काइंड ऑफ इनहिबिटेड काइंड ऑफ, ओके, वो नहीं काम करता है। थोड़ी सी बात करते हैं वॉर्फरिन के। ठीक है, वॉर्फरिन किसमें कौन पेशेंट लेते हैं? देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास पेशेंट है, फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग अ पेशेंट एंड द पेशेंट हैज अंडरवेंट हार्ट वाल्व, उसका वाल्व रिप्लेस हुआ है। तो एक आर्टिफिशियल हमने मतलब अलग से वाल्व रिप्लेस किया है, तो वो उस वाल्व पे क्लॉट्स ना बने उसके लिए पेशेंट को वार्फरिन देते हैं। फर्स्ट foremost indication of warfarin is in the cardiac patient, okay, in the cardiac patient. And for this dear, we need to make sure that the patient हमेशा ही लाइक शुड नॉट टेक एनी काइंड ऑफ, जैसे अभी पेशेंट है, ओके, तो पेशेंट सोचेगा मैं घर जाऊंगा तो हरी सब्जियां खाता हूँ और अच्छे से नहीं। नर्सिंग मैनेजमेंट आता है, whenever patient is taking a warfarin, he or she should not take a green leafy vegetables, green leafy vegetables नहीं लेनी है, क्योंकि उसमें विटामिन के है which act against warfarin and all. So we don't want such things to happen. Now we have been clear. And warfarin में dear हमेशा याद रखना, जब भी पेशेंट को warfarin चलता है, we need to check INR, PT and INR levels needs to be checked. Very, very important question, which has come in the exam. If a patient is getting warfarin, which blood test has to be done? Let's move to further question. Okay, a nurse is caring for a client with a CKD. What should a nurse teach the client to limit intake to help control uremia? यूरेमिया ना हो उसके लिए एक किडनी डिसीज वाले पेशेंट को क्या करना है? कोई भी डाइट जो प्रोटीन में होती है डियर, वो उसे लिमिट करनी नहीं लेनी है। ठीक है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोटीन प्रोटीन हैज टू बी अवॉइडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so let's talk about the next question. Okay, next question, let's have a discussion related to it. Okay. Okay, so a client rescued from a burning building has a partial full thickness, मतलब एक पेशेंट को बर्न है, तो आप उसमें कौन सा इनिशियल फिजिकल चेंजेस देखेंगे? क्या उसमें इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम होगा, या इंक्रीज इन सेरम पोटेशियम लेवल होगा, या डिक्रीज इन कैपिलरी परमेबिलिटी आप देखेंगे, क्या देखेंगे? तो हमेशा याद रखिए, या डिक्रीज इन यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविड, इसमें से क्या लगता है आपको? अगर किसी पेशेंट को बर्न है तो हमेशा याद रखिए सेल के अंदर जो हमारा पोटेशियम होता है, जब भी बर्न होगा तो ये पोटेशियम बाहर जाएगा, तो अल्टीमेटली पेशेंट विल हैव इंक्रीज लेवल ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम लेवल विल इंक्रीज, ओके, सो देयर विल बी इंक्रीज इन सीरम पोटेशियम। ये सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको गलती नहीं करनी। अब थोड़ी सी बर्न पेशेंट और बर्न के बारे में और भी बात कर लेते हैं। पार्कलैंड फॉर्मूला यूज होता है, हमेशा आरएल देते हैं, हमेशा डियर, जब भी पेशेंट बर्न पेशेंट को होता है उसे हम फ्लूइड जो है आरएल देते हैं। और जो क्रीम यूज होती है बर्न पेशेंट्स में, ओके, वी आर यूजिंग सिल्वर नाइट सल्फाडाइजिन, ओके, एंड पार्कलैंड फॉर्मूला यूज टू रिससिटेट पेशेंट की कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड देना है। इज दैट क्लियर? ओके, गुड, लेट्स मूव टू द फर्दर क्वेश्चन। ओके, what response should a nurse be particularly alert for when assessing a client for the side effect or long-term cortisons? cortisons लॉन्ग टर्म चल रहा है, तो हमेशा जिस पेशेंट की किडनी और यू कैन से ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, हम उसे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं, तो कॉर्टिसोन्स भी उसमें से कुछ आते हैं डियर। तो ये क्या करता है डियर, इसमें बिहेवियर यू कैन से बिहेवियर चेंजेस होता है। तो लेट्स हैव अ डिस्कशन रिगार्डिंग कॉर्टिसोन्स। कॉर्टिसोन्स क्या करता है? वीकनेस करता है इम्यून सिस्टम को, एंजाइटी डिप्रेशन करता है। तो ये जो मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे एंजाइटी डिप्रेशन से रिलेटेड है। नर्व प्रॉब्लम्स करता है डियर, ओके, डाइजेस्टिव इशू, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, हार्ट डिसीज भी करता है, तो ये आपको याद होना डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव टू फर्दर क्वेश्चन। ओके, this is the last question, and I hope so like you are able to understand the questions which already has been discussed. Okay, a nurse is admitting a client with a history of bipolar disorder. एक bipolar disorder का patient है ये. Okay, the nurse determined that the client is in the manic phase. एक manic phase में client. Which sign and symptoms contribute to the conclusion? तो patient कैसा दिखेगा? बाइपोलर पेशेंट, ठीक है, तो याद रखिएगा वो पेशेंट बहुत ग्रैंडियस नेचर का होगा। ग्रैंडियस मतलब अपने आप को भगवान समझना, बहुत इरिटेबल नेचर होगा, और
बोलता रहेगा, that is pressure speech, that is known as a pressure speech. So let's have a look of the bipolar disorders and all. So in this image you can see, as it is, this slide is very important as if we talk about regarding exam view. So we are having a bipolar 1, we are having a bipolar 2. So what is exactly how you can gonna differentiate between bipolar and bipolar 2? So you just see this bipolar 1. अब हम उसके साथ बात करते हैं कि यहाँ पे दिया मूड है या हाइपोमेनिया है एंड मेनिया. मेनिया मतलब सीवियर फॉर्म ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर. ठीक है, हाइपोमेनिया, मूड एंड दिस इज डिप्रेशन. तो बेटा जो बाइपोलर 1 के पेशेंट्स होते हैं वो पहले, अब देखिए इसको एक कलर कहा जा रहा है. ओके, 2 वीक्स तक दे विल हैव अ मूड लाइक अ डिप्रेशन, 2 हफ्ते तक डिप्रेशन रहेगा. फिर वो इतना इंक्रीज और इतने ग्रैंडियस और यू कैन स्पीच लाइक दे विल हैव, और इट विल रीच टिल मेनिया एंड विच विल लास्ट फॉर लाइक फॉर एग्जाम्पल विच विल लास्ट फॉर मोर देन 1 वीक्स एंड ऑल. ठीक है. तो अब आप देखो इसमें डिप्रेशन और प्लस मेनिया होना है, तो ऐसे पेशेंट्स को हम बोलते हैं बाइपोलर 1 डिसऑर्डर. तो बाइपोलर 1 डिसऑर्डर इज इक्वल टू डिप्रेशन प्लस प्लस मेनिया. दैट इज द बाइपोलर 2 की बात की जाए तो ये वैसे पेशेंट है जिनको डिप्रेशन तो 2 हफ्ते के लिए हो रहा है, बट वो इंक्रीज भी हो रहा है. ठीक है, एंड इट इज जस्ट गोइंग टिल हाइपोमेनिया. हाइपोमेनिया तक जा रहे हैं, मेनिया तक नहीं जा रहे हैं, एंड हाइपोमेनिया इज लास्टिंग फॉर 4 days. और फिर उनका लेबाइल काइंड ऑफ मूड हो रहा है. दिस काइंड ऑफ पेशेंट आर नोन एज अ बाइपोलर 2. सो नाउ वी आर क्लियर. Bipolar 1 are the patient depression plus mania. This bipolar 2 is depression plus hypomania. Whereas if we talk about the cyclothymia, these patients have a very labile mood. आप देख सकते हैं कभी डिप्रेशन कभी हैप्पीनेस है, ये करते करते उनको पूरा ये साइकिल 2 साल तक चलता है. तो दिस काइंड ऑफ पेशेंट्स आर नोन एज cyclothymic patients. Is that clear? So I hope so you got so many knowledge from this small video, dear. So thank you so much for seeing this video. Thank you so much, dear. Okay.